ओके, सो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज मर्चेंट बैंकिंग. We are on to the second chapter, and that is merchant banking. What was the first chapter? So far I remember it was introduction to financial services. So all the financial services, possibly all the financial services we could cover in the first chapter. We could understand the meanings of those financial services. I hope you remember there were two types that we had divided the services in while we were doing the first chapter, and it was fund-based services or non-fund-based services. Fund-based, you remember what was fund-based? Fund-based Yes, means, ma'am. yes, it was Directly related to cash, yes. money. Yes, money is directly invested. It is not an indirect relation with money. Money has a direct relationship with that particular financial service. Therefore, it was known as fund-based services. When we come to the second one, which is known as non-fund-based, it is always known as uh, non-fund based because money is not directly related to that particular service. Okay, you Can are be also called as huh? fee-based service. Very good. Keep it up. Very nice. Beautiful answer. It is also called as fee-based services. Why fee-based? Because there is a person, there is an expert who provide you advisory services basically. Any kind of advice, counseling, and then project management, anything. But they will give you advisory service. Okay, so any kind of advice, any kind of, yes, portfolio management is also a kind of advices, no, that this is the investment that you need to invest, put your money in, or this is the investment should be fetched out, withdraw the amount, put this money in this investment. That is known as portfolio management. He will guide you, he will take your responsibility. It is your work, but he will take your responsibility. He will guide your securities, what amount of securities and which type of security should be taken for the future benefits. Okay, so therefore any kind of advisory services which fetches a fees to them, which fetches a commission to them, known as non-fund based financial services, or you can say fee based financial services. Are you following me? I have a chat box before me, so you can write there. Are you following, everyone? Everybody? Yes? Okay, very good, very good. So मुझे ना आपसे एक और चीज पूछनी थी, मर्चेंट बैंकिंग. अब जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था इंट्रोडक्शन का, दैट टाइम मैंने आपको ना मर्चेंट बैंकिंग के बारे में थोड़ा आइडिया दिया था. देखो, हमने फर्स्ट चैप्टर में ना हर एक फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में थोड़ा जिस्ट पढ़ा है, आइडिया. ओनली अ फ्यू थिंग्स वी स्टार्टेड विथ while we were learning first chapter, but now every chapter will be in detail. If we are going to study about merchant banking, it will be in detail. Just like we have a next chapter, mutual funds, we will be learning it in detail. Okay, तो डिटेल भी मतलब इतना ज्यादा नहीं, पर कोशिश करके हम पूरे उसके एस्पेक्ट्स कवर करेंगे. Now I wanted to ask you, what type of financial service is the merchant banking? I mean, what type of service is this? Fund based or non-fund based? So Halima has answered, it is non-fund based. Very good, keep it up. Merchant banking is non-fund based. They will look after to all your affairs of the business. Like portfolio management is one of the activity that a merchant banker deals with. For you, they will deal with your securities to be invested, how much to be invested for, where to be invested. These are certain things that he will deal with while looking to a portfolio management. But he is not only bind to limited financial services. No, he can give you numerous financial services, numerous, like portfolio management, like an advice on how to build up uh, um,
project which is successful for next 10 years, next 15 years. Okay, whether to start extend your, how to extend your business, okay, how to expand your business, they will give you ideas. Okay, and if you want a very big loan, a very big loan, याद है लोन सिंडिकेशन सिखाया था मैंने आपको, याद है वो कॉन्सेप्ट, याद है लोन सिंडिकेशन, बस वही चीज। लोन सिंडिकेशन भी कौन करा के दे सकता है आपको? मर्चेंट बैंकर। So he is not limited with the boundaries of certain or few financial services. No, he is not limited to certain boundaries. He can give you so many number of financial services altogether. Okay, and that particular person who performs the functions of merchant banking is known as merchant banker. That person, that expert who performs the functions of merchant banking is known as merchant banker. So the basic things we have seen. Now, what do you mean by merchant banking? We have already studied in chapter number 1, but still, because we need to start a fresh chapter, we need to start it with meaning. So what do you mean by merchant banker? Merchant banker is somebody, merchant banker is defined as an institution which covers a wide range of activities, not small range, not a few range, not only one thing, but there are so many things that they provide you. Okay, therefore it is said as wide range of activities. Now which activities? What all activities, ma'am? We don't remember. So here are they. Underwriting of shares. They give you the service of underwriting of shares. If you are not going to sell your shares, it's okay. I am going to do it for you. I am the underwriter. I am an agent called as an underwriter, and I will see how many shares are to be issued in the market, to whom the shares are to be issued in the market, for how much the shares are to be issued in the market, what price should be quoted in the market, should the shares be listed in the stock exchange or not. He will see. He will take the responsibility of all the matters related to issue of shares. Therefore, if the process of issuing of shares by an underwriter is known as underwriting of shares. इतना समझा सबको? ठीक है, ये पहला एक्टिविटी। दूसरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ना, ये तो मैंने आपको अभी अभी बताया। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मतलब क्या? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज इन अ बकेट। आपकी है, सारी आपकी है, पर आपके पास है ना एक सिक्योरिटी नहीं है, सिर्फ एक कंपनी का इक्विटी शेयर नहीं है, पता नहीं कितने कंपनीज के इक्विटी, कितनी कंपनी के डेट्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीद के रखी हैं, ट्रेजरी बिल्स खरीद के रखे हैं आपने, है ना। एक ही बकेट में, एक ही, मतलब आपके पास 3 लाख का सपोज अमाउंट है, अब 3 लाख की आपने बैंक में एफडी कर दी, तो आपकी एक इन्वेस्टमेंट है ना। पर इसी 3 लाख, आपके पास 3 लाख ही है, अगर इसी 3 लाख को आपने सिर्फ बैंक की एफडी में ना ब्लॉक करके आपने डिवाइड कर दिया, उसको डिवाइड कैसे? 1 लाख मैंने एफडी करा दी बैंक में, 1 लाख का मैंने म्यूचुअल फंड खरीद लिया, और 1 लाख का मैंने से लाइक एग्जाम्पल थोड़ा इंश्योरेंस करा लिया। वेरी गुड, गुड एग्जाम्पल, थोड़ा इंश्योरेंस करा लिया, या फिर 50,000 का इंश्योरेंस करा लिया, और 50,000 का समझो किसी कंपनी का ना पब्लिक डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, किसी कंपनी में, रिलायंस कंपनी में। हो गया ना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, इसको कहते हैं डाइवर्सिफाइड। अमाउंट इज डाइवर्सिफाइड, कि अगर एक जगह से नुकसान हो भी गया तो दूसरी जगह तो प्रॉफिट ही होगा ना। ऐसे थोड़ी नहीं कि सब मुझे नुकसान ही देंगे। चलो ये 50,000 में से नुकसान हो गया, बैंक की एफडी थोड़ी ना नुकसान देती है। हाँ, कवर अप हो जाएगा, एक का नुकसान दूसरे से कवर अप हो जाता है ना। पोर्टफोलियो का फायदा ये होता है। चलो हम तो फायदों में चले गए, फायदों में नहीं जाकर अगर हम देखें कौन कौन सी एक्टिविटीज में मर्चेंट बैंकर इन्वॉल्व होता है, वो है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट काउंसलिंग। अब प्रोजेक्ट काउंसलिंग का नाम से ही पता लग रहा है क्या? प्रोजेक्ट काउंसलिंग। प्रोजेक्ट मीन्स आपका प्रोजेक्ट नहीं जो हम आपको थोड़ा बहुत छोटा मोटा प्रोजेक्ट दे देते हैं, नहीं, ये लिख के आओ, वो लिख के आओ, ये सम ढूंढ के लिख के आओ, ये नहीं प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मीन्स सपोज मेरी कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला कि आपको है ना मेट्रो बनाना है,
क्या आप बनाएंगे, मेरी मदद करेंगे मेट्रो बनाने में, मेट्रो ट्रेन? अब जैसे गवर्नमेंट को मेट्रो बनानी थी, गवर्नमेंट नहीं खुद खड़ी हो जाती है मेट्रो बनाने के लिए। गवर्नमेंट खुद नहीं खड़ी होती है, वो किसी कंपनी को ये प्रोजेक्ट देती है। ओके, वो खुद नहीं खड़ी हो जाएगी ना, है ना? तो कौन सी कंपनी को उसने प्रोजेक्ट दिया? अब ये तो रिलायंस कंपनी को उसने प्रोजेक्ट दिया, है ना? अब वो तो बहुत बड़ी स्टोरी है, रिलायंस को कैसे ये प्रोजेक्ट मिला, है ना? अब वो तो बहुत बड़ी स्टोरी है, उसके पीछे ना एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको ना, वो कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? सील्ड, एक मिनट रुको मैं बताती हूँ आपको। फील्ड कुछ तो एक वर्ड है, मैं आपको ढूंढ के ना गूगल करके बताऊंगी। वो उसकी वो ना एक सर्विस का नाम होता है उसका, सॉरी। जिस हम गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग कंपनीज को ये ना पहले भेजेगी, प्रोजेक्ट भेजेगी कि आप बताओ मुझे, आप कितना प्राइस पे ये मुझे प्रोजेक्ट बना के दे सकते हो, आप भी बताओ, आप भी बताओ। रिलायंस, टाटा, सबके पास ये प्रोजेक्ट जाएगा, सबके पास। गवर्नमेंट बड़ी बड़ी कंपनीज को, जानी मानी कंपनीज को, नोन कंपनीज, दोज हु हैव अ वेरी गुडविल स्टैंड, जो जिनका गुडविल बहुत अच्छा है मार्केट में, ठीक है, तो ये ना बेचती है उनको, ठीक है। अब है ना, क्या क्या करते हैं सारे, जो भी जितने भी कंपनीज है, समझो 10 कंपनीज है, गवर्नमेंट ने 10 कंपनीज को भेजा, ठीक है। हाँ, टेंडर बोल सकते हैं इसको, टेंडर प्रोजेक्ट ही होता है, ठीक है। लेकिन मेरे बोलने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है, ये प्रोजेक्ट सबको प्रपोज करेगी कि आप मुझे बताओ कि आप ये प्रोजेक्ट अगर मुझे बनाकर दोगे तो आप मुझे कितने प्राइस पे चार्ज करोगे, ठीक है। अब अब है ना, सब अपना अपना प्राइस लिखेंगे। अब प्राइस कैसे लिखते हैं आपको पता है? एक एनवलप होता है जिसमें सील्ड एनवलप होता है, जिसमें ना आप अपने जो भी आपको एक लेटर बनाया जाता है वो सील्ड एनवलप में डाला जाता है, और उस लेटर में आपकी प्राइस होती है, कोटेशन प्राइस जिसको बोलते हैं, कि अच्छा ये मेरा ना 1.5 करोड़ में आपको मैंने ये प्रोजेक्ट बनाकर देना है। कोई बोलेगा 2 करोड़ में ये मेट्रो बनाकर मैंने आपको देना, ये तो बड़ा सस्ता है। कोई बोलेगा 5 करोड़ में बनाकर देना। अब गवर्नमेंट किसको चूज करेगी? आपके पास है ना, आपके सामने दो चीजें और बड़ी सिमिलर है, ठीक है, सेम सेम दिख रही है। एक है ना 10 रुपए की, 12 रुपए की, आप कौन सी चीज खरीदना पसंद करेंगे? बिल्कुल सेम है, हाँ, क्वालिटी और ना क्वांटिटी और उसका कलर, साइज, शेप, सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम। बट somebody who is giving you for 10 rupees, you would like to go for that 10 रुपीज। क्यों? क्यों? क्योंकि हर कोई चाहता है कि मुझे कम प्राइस पे बड़ा अच्छा प्रोडक्ट मिले। तो गवर्नमेंट भी तो यही चाहती है, गवर्नमेंट भी हमारे जैसी है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि मुझे सबसे कम प्राइस पे मेरा प्रोजेक्ट बन के मिले। तो अब जिस कंपनी ने 2 करोड़, 1.5 करोड़, 3 करोड़ ऐसे कोटेशन आई गवर्नमेंट को, एनवलप सील होके आता है। पता है सील्ड होके क्यों आता है? क्योंकि अगर रिलायंस ने गवर्नमेंट को भेजा तो रास्ते में अगर टाटा ने देख लिया तो, रास्ता डज नॉट मीन फिजिकल रास्ता, हाँ, मतलब अगर समझो एक के हाथ में एनवेलप सील, जो एनवेलप सील नहीं होगा तो वो तो कोई भी देख लेगा ना। आपको ऐसे पब्लिकली नहीं बताना है कि मैंने 2 करोड़ में ये प्रोजेक्ट इशू करना है। अगर बता दोगे तो सामने टाटा वाली कंपनी क्या बोलेगी, नहीं नहीं इसने 2 करोड़ बोला ना, अब मैं 1.5 करोड़ में लगाऊंगी अपना प्राइस। तो पता लग जाएगा। देखो, पता नहीं लगाना है किसी को, पता नहीं लगाना है। रिलायंस को पता नहीं लगना चाहिए टाटा ने कितने में कोट किया है, नहीं तो रिलायंस जानबूझ के प्राइस कम कर देगा गवर्नमेंट को, है ना। तो सारे ना छुप छुप के अपना प्राइस भेजते हैं। आ रही है बात समझ में? ये प्रैक्टिकल होता है ऐसा ही, जो मैं आपको थोड़े फनी वर्ड्स में बता रही हूँ, छुप छुप के एंड ऑल, है ना। ये प्रैक्टिकली ऐसा होता है, सील्ड एनवेलप में जाता है, और वो सील्ड एनवेलप ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट कैन ओपन, और वो देखती है कि सबसे कम प्राइस किसका है, उस कंपनी को फाइनल कॉल करती है, उसको लेटर ड्राफ्ट करके भेजती है कि भाई आपके साथ मेरा अभी लिंक हो गया, 2 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट है, और आपने मुझे ये प्राइस पे इतना इतना ये काम मुझे करके देना, ये टाइम पीरियड के अंदर। आई बात समझ में? इसका ना एक नाम होता है, मैं आपको बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। मुझे सिर्फ थोड़ा सर्च करने को, मैं नाम बिल्कुल भूल गई हूँ, दिमाग से निकल गया। मैंने ना अपने MBA के टाइम पे पढ़ा था, और जो मैंने गवर्नमेंट का एग्जाम क्लियर किया था ना अभी नेट का, तभी पढ़ा था। पर नाम बिल्कुल, प्रोसेस याद है मुझे पर नाम भूल गई। सो आई विल श्योरली टेल यू, ठीक है। सो प्रोजेक्ट काउंसलिंग, पता लग गया आपको क्या होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट के बारे में काउंसिल करेंगे आपको मर्चेंट बैंकर्स। क्या काउंसिल करेंगे? ये प्रोजेक्ट में पैसा डालना वर्थ है कि नहीं है, कितना प्रॉफिट मिल सकता है,
कितना कोटेशन प्राइस होना चाहिए ये प्रोजेक्ट के लिए, समझ में आया? कौन सी चीजें गाइड करता है मर्चेंट बैंकर। इंश्योरेंस के लिए भी गाइड करेगा, आपकी कंपनी को ना एम्प्लॉयज के लिए इंश्योरेंस कराना चाहिए, कंपलसरी हो गया है, ऐसा गाइड करेगा वो। कितने का इंश्योरेंस कौन सा कराएं पता नहीं, कौन सा मेडिकल इंश्योरेंस कौन सी कंपनी से कराएं वो भी पता नहीं है आपको। तो मर्चेंट बैंकर है ना, वो गाइड करेगा आपको कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस लो, कौन सा वाला हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। हमने पढ़ा है ओआईएस में, देयर आर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, है ना। हेल्थ इंश्योरेंस में जाओगे तो भी बहुत सारे टाइप्स हैं। जब हम जनरल व्हीकल इंश्योरेंस देखते हैं उसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, है ना। तो कौन सा वाला हेल्थ इंश्योरेंस लेना है एम्प्लॉयज के लिए, कौन सा मेडिकल इंश्योरेंस लेना है, कौन सी टाइप ऑफ एम्प्लॉयज के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लेना है, किसके लिए नहीं लेना है, ये डूज एंड डोंट्स उनको पता होते हैं, है ना। तो यस, प्रोजेक्ट काउंसलिंग भी करेगा, इंश्योरेंस के लिए भी आपको आइडियाज देगा, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स भी करके दे सकता है। एक्सेट्रा लिखा हुआ है, देखो एक्सेट्रा, ऐसे नहीं लिखा हुआ है एंड इंश्योरेंस, एक्सेट्रा मतलब इसके अलावा भी अगर वो कुछ कर सकता है ना तो वो भी करेगा आपके लिए। लीगल मैटर्स में भी हेल्प करते हैं मर्चेंट बैंकर्स, कि अगर कोई कंपनी में कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी आपको हेल्प करते हैं मर्चेंट बैंकर्स, है ना। तो उसके अगेंस्ट में चलो, ये तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिसमें मर्चेंट बैंकर आपको हेल्प करते हैं। आपको ना लोन लेना है, लोन सिंडिकेशन, वो भी मैंने आपको बताया। अच्छा, आपको ना एक्सपोर्ट करना है, सबसे बड़ा काम पता है मर्चेंट बैंकर क्या क्या होता है। जब आपको ना बाहर किसी कंट्री में एक्सपोर्ट करना है, ही स्टैंड्स एज अ गारंटर कि आप ये सामने वाली कंपनी को गुड्स भेजो, और उससे उसकी सामने वाली जो कंपनी है उसकी कोई बैंक होगी, उस बैंक से मैं आपको कंफर्मेशन लेके देता हूँ कि ये कंपनी फाइनेंशियली अच्छी है कि नहीं। तो मर्चेंट बैंकर आपको हेल्प करते हैं आपके एक्सपोर्ट्स में, ठीक है। एक्सपोर्ट्स के लिए फंड रेज करना है, एक्सपोर्ट्स के लिए फंड नहीं है आपके पास, ठीक है, तो मर्चेंट बैंकर रेस करके देगा फंड्स, मतलब रेस मतलब लोन लेकर देते हैं। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है तो आपको फंड्स रेस कर कर भी मर्चेंट बैंकर देता है। ये भी एक सर्विस है जो लिखी हुई नहीं है यहाँ पे, बट आई एम टेलिंग यू, ओके। फॉर ऑल दीज सर्विसेज मर्चेंट बैंकर चार्जेस अ फीस। what he will charge what he will charge he will charge a fee। देखो लिखा हुआ है, दे ऑल रेंडर दीज सर्विसेज फॉर अ फी। फ्री में कोई काम नहीं करेगा, आपसे कुछ तो लेगा, क्या लेगा, फी लेगा। अच्छा, फी नहीं तो कमीशन लेगा, पर यहाँ पे उसको फी का नाम दिया हुआ, ठीक है। इसके लिए इसको बोला जाता है फी बेस्ड सर्विसेज, एंड आई होप यू आर फॉलोइंग मी, समझा ना, ठीक है। बोथ कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंक्स में एंगेज इन मर्चेंट। अच्छा, अभी कौन होता है जो मर्चेंट बैंकिंग कर सकता है, कौन होता है, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मर्चेंट बैंकिंग कर सकते हैं। देखो हमने पढ़ा फर्स्ट लाइन में, मर्चेंट बैंकिंग इज एन इंस्टीट्यूशन विच कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज सच एज सो ऑन। But what different types of institutions can involve themselves in the services of merchant banking? Commercial, investment banks, anybody can come forward. Any commercial bank, any investment bank can take up the part of merchant banking, or any other financial institution also. कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, वो भी मर्चेंट बैंकिंग के क्या कहते हैं उसे, फंक्शंस को फुलफिल करने के लिए रोल ले सकती है। आया समझ में, ठीक है। अब आगे बढ़े। द ओरिजिनल पर्पज ऑफ मर्चेंट बैंक्स, क्या होता है इनका ओरिजिनल पर्पज, क्या होता है, वॉज टू फैसिलिटेट एंड और फाइनेंस द प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ कमोडिटीज एंड हेंस द नेम मर्चेंट। देखो मर्चेंट कौन होता है, मर्चेंट कौन होता है, इंग्लिश जो मर्चेंट वर्ड है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, व्हाट इज मर्चेंट, हु इज मर्चेंट। जो बिजनेस करता है ना, जो आपको गुड्स बेचेगा तो आपसे अगेंस्ट में कुछ तो लेगा, है ना। मर्चेंट कौन होता है, जो बिजनेस करता है, अ बिजनेस मैन, उसको मर्चेंट ही तो कहते हैं, और क्या कहते हैं।
काम करने वाला, बिजनेस करने वाला आदमी, जिसको हम बोलते हैं मर्चेंट, ठीक है। तो मर्चेंट, जो मर्चेंट बैंक होती है ना, उसका बेसिक काम यही होता है कि आपको आपके बिजनेस के प्रोडक्शन के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, कमोडिटीज को जब हम ट्रेड करते हैं ना, बाय एंड सेल करते हैं, बाय एंड सेल करने के लिए प्रोडक्ट को बनाना पड़ता है, प्रोडक्शन करनी पड़ती है, उसके लिए ना आपको फाइनेंस देना या फिर फैसिलिटीज अरेंज करके देना। सपोज आपके पास फाइनेंस तो है पर मशीन्स नहीं है, कौन सी मशीन खरीदूं? मर्चेंट बैंकर आपको एडवाइस करेगा ये वाली मशीन, ये वाली क्वालिटी, ये वाला ब्रांड अच्छा है। आपको मशीन सेटअप करके वो दे सकता है, आपको ऑफिस सेटअप करके वो दे सकता है, ह्यूमन रिसोर्स सेटअप करके दे सकता है। आई बात समझ में? सो एनी काइंड ऑफ रिसोर्स विच यू आर लैकिंग इन, you can take help of a financial advisor who will be able to make you understand। हाँ, ऐसा आप बोल सकते हैं। निधि ने बहुत अच्छे से हिंदी में लिखा है, व्यापारी, सौदागर। वेरी नाइस निधि, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड, वेरी गुड जॉब। हिंदी में लिखा है आपने, कैसे लिखा बेटा हिंदी में? आपके पास वो हिंदी फॉन्ट होगा ना मोबाइल में? यस मैम। गुड जॉब बेटा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। व्यापारी, ये एग्जैक्ट वर्ड है हिंदी में जो मैं भी नहीं बोल पाई और निधि ने बताया। व्यापारी, इसको कहते हैं मर्चेंट। बस ऐसे समझो बिजनेसमैन, इंग्लिश में इसका सिंपल वर्ड अगर मैं बोलूँ तो बिजनेसमैन। और हिंदी में बिजनेसमैन को क्या बोलते हैं? जो व्यापार करता है, जो बिजनेस करता है। ओके, बस उसी को तो कहते हैं मर्चेंट। तो मर्चेंट आपको क्या करेगा? आपके बिजनेस के लिए फाइनेंस और फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, वो होता है मर्चेंट बैंकर। Okay, so merchant banking is an institution that deals mostly in international finance। मैंने आपको पहले ही बताया, इनका सबसे बड़ा काम, इनका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो काम होता है ना, वो यही होता है, इंटरनेशनल। बाकी तो देखो वो देते रहते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विस दे दी, अंडर राइटिंग की सर्विस दे दी, प्रोजेक्ट काउंसलिंग के लिए भी बोल दिया, ठीक है हम प्रोजेक्ट काउंसलिंग भी करते हैं। लेकिन उनका सबसे इम्पॉर्टेंट, देखो एक टीचर होता है, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है? पढ़ाना। लेकिन सिर्फ पढ़ाते नहीं है टीचर्स, पेपर्स भी सेट करते हैं, पेपर्स चेक भी करते हैं, अच्छा टाइम टेबल भी बनाते हैं बच्चों के लिए। हम किसी और को नहीं बोलते टाइम टेबल बनाने के लिए, हम खुद बनाते हैं। तो हमारा काम तो एक्चुअली पढ़ाना है। टीचर इज समबडी हु इज टीचिंग, हु टीचेस। बट अपार्ट फ्रॉम टीचिंग देयर आर फ्यू अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट वी टेक इन। आई बात समझ में? तो वैसे ही एक मर्चेंट बैंकर का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? ही डील्स इन इंटरनेशनल फाइनेंस। ये मैंने आपको पहले अभी अभी बातों बातों में क्लियर किया, ऊपर नहीं लिखा था पर मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, और आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में जाने के लिए पैसा चाहिए, फंड रेज कराना है, तो वो मर्चेंट बैंकर आपको हेल्प करता है, बिजनेस लोन लेकर देता है फॉर कंपनीज एंड अंडर राइटिंग, है ना। दीज बैंक्स आर एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल ट्रेड। देखो कितना क्लियर लिखा हुआ है, तभी तो मैंने कहाँ से लाइन उठाकर देखो यहाँ पे लगाई है आप लोगों के लिए। ये खास मैंने, देखो ऊपर का फॉन्ट अलग है, नीचे का फॉन्ट अलग है। ये ना मैंने बहुत ढूंढा इसको, मुझे ये चाहिए थी, ये लाइंस कहाँ से मुझे मिलेंगी जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस लिखा हो। तो मैंने बहुत ढूंढा, बहुत सारे क्या कहते हैं उसको, अलग अलग वेबसाइट पे जाकर मर्चेंट बैंकिंग के बारे में पढ़ा, तब जाके मुझे ये मिला। एक्चुअली ये मर्चेंट बैंकिंग का मेन मोटो होता है, टू फैसिलिटेट कंपनीज विथ इंटरनेशनल फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड उनका मतलब स्मूथ हो जाए, which makes them specialist in dealing with multinational corporations। बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होती हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस मतलब एमएनसीज। एमएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। आप आज तक बोलते आए होंगे एमएनसी, एमएनसी कंपनी, एमएनसी कंपनी। तो एमएनसी क्या होती है? मल्टीनेशनल। मल्टीनेशनल मतलब जो सिर्फ नेशनल नहीं है, मल्टी, मल्टी मतलब जो सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं है कंपनी, जो बहुत सारे देशों में फैली हुई है। देशों में भी बोल सकते हैं या फिर अलग अलग जगहों पे, ठीक है। बहुत सारे देशों में मेरी ये कंपनी सेटल्ड है, ठीक है। तो अब क्योंकि बहुत सारे देशों में है तो बहुत सारी, हाँ आउट ऑफ द बाउंड्री, हमारे सिर्फ इंडिया की बाउंड्री में नहीं आता है, उससे बाहर भी है। तो वैसे ही सेम केस, अब जो कंपनी मैकडॉनल्ड्स है वो तो यूएस की कंपनी है, लेकिन क्या मैकडॉनल्ड्स सिर्फ यूएस में है? नहीं, ऐसी कंपनी तो हर जगह आपको मिलेगी।
मैकडॉनल्ड्स तो आज देखो, मैकडॉनल्ड्स ने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ मैकडॉनल्ड्स नहीं है। इंडिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, यूरोप में भी है, एवरीवेयर, है ना। हर जगह आपको मैकडॉनल्ड्स कंपनी मिलती है। अब तो मैंने सिर्फ 2-3 कंट्रीज का नाम लिया, आप जिस कंट्री का नाम लो उधर मैकडॉनल्ड्स है। पर मैकडॉनल्ड्स है कहाँ की? यूएस की है ना, तो इट इज मल्टीनेशनल कंपनी। आई बात समझ में? आ रही है समझ में बात? हाँ, वो यूएस बेस्ड कंपनी है, ठीक है। तो जो भी मेरी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, उनको इंटरनेशनल ट्रेड स्मूथ करके देना, उनके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, मे बी ट्रांसपोर्ट, मे बी अदर थिंग्स, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लगती है, सिर्फ फाइनेंस ही नहीं लगता है, बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी लगती हैं। जैसे बैंक से अगर आप किसी सामने वाली कंपनी को, सपोज, हाँ इंटरनेशनल ट्रेड का एग्जांपल ले लो, सपोज सामने वाली कंपनी को आप गुड्स बेच रहे हो, अब वो तो कंपनी जब तक आपको ऐसा दिखाएगी नहीं कि मैं आपको ज़रूर आपका अमाउंट पे करूँगी, तो आपको ना फिर डाउट हो जाएगा कि इस कंपनी को मैंने गुड्स तो भेजनी है, पर पैसे अगर टाइम से नहीं मिले तो मर्चेंट बैंकर क्या करता है, वो बीच में एज एन एजेंट आता है। वो क्या करता है, जो यूएस में बैठी कंपनी है उसकी बैंक से गारंटर बन के एक लेटर लेता है, मतलब आप बैंक बोलेगी कि मैं गारंटर हूँ, ठीक है। अब वो आपको एक गारंटी लेके देगा कि अच्छा इसकी बैंक बैठी है, अगर ये पैसा नहीं देगा ना इसकी बैंक से मैं वसूल करके दूंगी। सो ही इज अ मर्चेंट बैंकर, स्टैंड्स एज एन एजेंट फॉर यू, ठीक है। तो आपको एक फैसिलिटीज को स्मूथ करके देता है, लेटर ऑफ क्रेडिट जिसको बोलते हैं। वेरी गुड नेहा, गुड जॉब। सो लेटर ऑफ क्रेडिट जिसको हम सीखे ना, वो इशू करा कर देगा। मतलब जो, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, है ना। तो जो भी फैसिलिटीज है, फाइनेंस चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, कैसे कुछ को पहुंचाना है, कितना पेमेंट करना पड़ेगा, कितनी इंपोर्ट ड्यूटीज लगानी